Hello students, once again we are at our channel Chemistry Made Simple by Simple Rajendra Shukla. Students, in this video my main aim is to make you understand the relationship between E naught and spontaneity. जैसा कि आप सबको पता है बच्चों, E naught का बिल्कुल सीधा कनेक्शन है स्पॉन्टेनिटी से। अब वो कनेक्शन क्या है, इस तरह के सवाल कैसे हैंडल करने चाहिए, ऐसे दो सवाल जो डायरेक्टली ई नॉट पे बेस्ड हैं और जो हमें बताएंगे कि किस तरह से हम ई नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस जब हमें वो ई नॉट आ जाता है तो हम कैसे पता लगाएं कि गिवन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। और ज़रूरी नहीं है ई नॉट तक भी पहुंचना, उसके पहले भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज से जो रिएक्शन हो रहा है उस पे ध्यान देते हुए हम पता लगा सकते हैं कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब आप सब ये सोच रहे होंगे स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब क्या। स्पॉन्टेनियस यानी वो सेल जो इलेक्ट्रोजेनिक है, यानी कि जो गैल्वेनिक है, meaning a voltaic cell or an electromotive cell. So spontaneous cell is a electrogenic cell, a electromotive cell, a voltaic cell, a galvanic cell. And such a cell has a spontaneous redox chemical reaction taking place in it. While जो नॉन स्पॉन्टेनियस सेल होता है, वहीं पर जो नॉन स्पॉन्टेनियस सेल होता है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। Meaning a non-spontaneous cell is an electrolytic cell, and in this electrolytic cell the electrical energy gets converted to the chemical energy. और ऐसे नॉन स्पॉन्टेनियस सेल का जो ईएमएफ आता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ आता है, वो भी नेगेटिव आता है, जो कि इस बात पे कहीं ना कहीं इशारा करता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलता है, यानी कि ये खुद नहीं चल सकता। सो नॉन स्पॉन्टेनियस redox chemical reaction takes place in a electrolytic cell. तो एक थोड़ा सा मैंने आपको एक लगभग तरीका दे दिया कि किस तरह से आप पहचानेंगे स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर तो वो ईएमएफ जनरेट कर रहा है, यानी कि उसका ई नॉट पॉजिटिव आ रहा है तो स्पॉन्टेनियस है, और अगर ई नॉट नेगेटिव आ रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। And hence, students, we can finally say that a spontaneous cell is the one in which a spontaneous redox chemical reaction takes place. And this cell is also called the electromotive cell, the electrogenic cell, or the voltaic and the galvanic cell. And in such a cell, particularly, the electrical energy is obtained by a chemical reaction taking place on its own, I mean spontaneous, in the cell. While a cell which is an electrolytic cell, in that cell chemical energy is produced from electrical energy, that is the electrical energy is converted to chemical energy, and a non-spontaneous redox chemical reaction is forcefully made to take place by supplying electricity, and such a cell is called the electrolytic cell. और ऐसे सेल का E नॉट नेगेटिव आता है। ठीक है, तो ये एक आपको मैंने इंट्रोडक्शन रिव्यू कर दिया, ये दो सवाल में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। Now just look at the first question. The first question is saying the standard oxidation potential for the half cell reaction. Okay, meaning I have got standard oxidation potential of zinc. ये सॉलिड है, ये एक्वस है। हालांकि यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है एंट्रेंस एग्जाम में, बट ये समझाने के लिए मैं ये सब लिख रही हूँ। व्हेन यू आर सॉल्विंग इट इन द एंट्रेंस एग्जाम, ऑब्वियसली यू विल नॉट डू ऑल दिस डायरेक्टली, यू विल कम टू द पॉइंट। सो वी विल बी गेटिंग 0.76 volts and that is the SOP, standard oxidation potential, as mentioned in the question. You can see here it is given standard oxidation potential. Now
The standard oxidation potential of Fe is also given, that is Fe solid in contact with ferrous ions which are aqueous, and the value given is 0.41 volts, and that is the standard oxidation potential. Now students, my dear students, you want to find EMF of this reaction, and in this reaction Fe is getting, you can see in this reaction Fe is changing from +2 to 0, यानी कि in the given reaction, यहां से हम बोल देते हैं in the given reaction, यानी कि जब मैं बोल रही हूँ इन द गिवन रिएक्शन, यानी हम ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई डेटा के हिसाब से कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा। अगर सिर्फ इस डेटा को देखें तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा और Fe रिड्यूस होगा, क्योंकि Fe का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, Fe की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, यानी Fe में ऑक्सीडेशन होने की क्षमता कम है, इट इज हैविंग लेस टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू द डेटा। पर हो सकता है डेटा रिएक्शन से मैच करे, हो सकता है रिएक्शन से ना भी मैच करे। अगर ये डेटा बता रहा है जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर सवाल सिर्फ इतना आता है एंट्रेंस में कि ये स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस सेल है, तो उतना तो बच्चों इधर ही सॉल्व हो गया। अगर ऐसा सवाल आता है जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, यानी जिंक ऑक्सीडेशन करेगा खुद का, और ये सेल में आप देख रहे हैं जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 से उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया, एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो ये सेल स्पॉन्टेनियस है। But if you take care, why we are solving further, because they have asked us to calculate the EMF and not just whether the cell is spontaneous or non-spontaneous. So in the given reaction we can see zinc is getting oxidized, zinc का oxidation हो रहा है और ferrous का reduction हो रहा है, so it is in accordance with the data, यानी कि ये सेल जरूर स्पॉन्टेनियस होगा, जो कि हम पता लगा लेते हैं। इसका E नॉट निकाल के फर्दर क्लैरिफाई कर लेते हैं। E नॉट सेल का फॉर्मूला है E नॉट ऑक्स प्लस E नॉट रेड। अब रिडक्शन किसका होगा ये हमें नहीं सोचना है, डेटा में दिया है जिंक का ऑक्सीडेशन और फेरस का रिडक्शन। सो मुझे यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सब्स्टिट्यूट करना है। बी वेरी वेरी अटेंटिव स्टूडेंट्स, I have to substitute zinc oxidation potential. Once again I am saying be very very attentive. I have to substitute zinc oxidation potential. I immediately go to the data, and the data is telling the oxidation potential in standard condition for zinc is 0.76. So I write 0.76 here. Now I see further I have to substitute Fe reduction potential of iron. Once again I am repeating, I have to substitute ions reduction potential. I go to the data, they have given me standard oxidation potential, so I will just think, and by thinking we get that if SOP is plus 0.41, then SRP will be minus 0.41 volt. This we all know, every SOP is minus SRP. So I substitute here minus 0.41 volt, and hence the E naught cell which we get is 6 minus 1 is 5, 7 minus 4 is 3, so 0.35 volts. So I hope this is clear to everybody, and if you see my dear students, you got the voltage positive. That means this cell will function to convert chemical energy to electrical energy equivalent to 0.35 volts. So the cell is electrogenic and it is generating a EMF of 0.35 volts. जहां भी आपको लग रहा है कि कहीं समझने में दिक्कत हो रही है, कुछ भी है,
आप इमीडिएटली वीडियो पॉज करिए, उसको रिव्यू 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 करिए। वो पार्ट जब आपका टॉपिक का एकदम पक्का हो जाए ना बच्चों, तो ही आगे बढ़ना है, तो ही फायदा है रिकॉर्डेड लेक्चर का, आपको बहुत फायदा होगा। और ये सिचुएशन में आप सभी सभी स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं, हम जानते हैं ये बात। आप फिर भी इतना पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में। आई रियली अप्रिशिएट यू। अब हम इसको इरेज कर देते हैं एंड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So you can read the next question, my dear students. The standard reduction potential of Fe2 plus getting converted to Fe0 and Sn2 plus which is getting converted to Sn0 are minus 0.44 volt and minus 0.14 volt respectively. Minus 0.44 volt and minus 0.14 volt respectively. Calculate standard EMF of this equation. So first I am just writing the data of the second question. I am provided with E0 reduction ferrous to ferrum, which is 0.44 volt minus, it is minus 0.44 volt, and that's the standard reduction potential. It is mentioned, already mentioned in the question. And the standard reduction potential of stannous getting converted to stannum is minus 0.14 volt, and that's the standard reduction potential. Now I want to calculate E0 standard EMF of cell. It's given, and for this equation, so I'll just think for that equation I have to calculate. So let us see. In the given equation, Fe is getting reduced, its reduction is taking place, while tin oxidation is taking place. And so by chance, अगर assume कर रहे हैं, ये सवाल सिर्फ इतना होता, this reaction is or this cell is electrogenic or electrolytic, spontaneous or non-spontaneous, then we can find that only with this much. We don't have to even find E0 cell. That is what I'm just trying to tell you. So understand what I'm saying. In case I'll just find whether the cell is spontaneous or non-spontaneous in an entrance exam question, or I'll just find it is electrolytic or electrogenic. यानी कि बच्चों अगर एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन में मुझे सिर्फ इतना ही फाइंड करना है कि ये जो सेल है ये इलेक्ट्रोलिटिक है या इलेक्ट्रोजेनिक है, यानी कि इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है या वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है, और मुझे बस इतना ही पता करना है, तो वो स्थिति में बच्चों हमें E0 सेल फाइंड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो हम कैसे पता करेंगे? देखिए अगर ये दोनों स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को आप कंपेयर करें तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। यानी कि जब ये दोनों कंबाइन होंगे, ये दोनों कपल होंगे और एक सेल का निर्माण होगा, तब इसका रिडक्शन होगा। अब सिर्फ मुझे वहां जाके देखना है क्या टिन का रिडक्शन हो रहा है? नहीं, टिन का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि ये अपनी जो क्वालिटी है उसमें जो एबिलिटी है, उसमें जो क्षमता है उसके विरुद्ध काम करना चाहता है। उसकी क्षमता है रिडक्शन करने की, लेकिन वो कर रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन है। यानी ये सेल अपनी जो उसकी काबिलियत है
उसके विरुद्ध उसे काम करना है, तो ये काम करवाने के लिए मुझे इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। अब why we are calculating E naught cell? Why I am calculating E naught cell? Because they have asked me to calculate E naught cell. तो हमने assume किया, बाई चांस अगर वो नहीं पूछा और सिर्फ स्पॉन्टेनिटी पे ही सवाल है तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बट बिकॉज दिस क्वेश्चन इज कैलकुलेट ईएमएफ, तो मैं यहाँ से अब ईएमएफ पे भी जा रही हूँ एंड सी व्हाट इट विल बी। नाउ वी नो E naught cell is E naught ox plus E naught red, ओके। ये अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सेल देखना है ना कि काबिलियत, सेल, क्योंकि उसने रिएक्शन दिया हुआ है हमें। सो ऑक्सीडेशन टिन एंड रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस ऑफ Fe। नाउ टू फाइंड E naught सेल मुझे सब्स्टिट्यूट करना है टिन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मुझे सब्स्टिट्यूट करना है टिन का oxidation potential. To find the standard EMF of the cell, children, I have to substitute the oxidation potential of tin. So I go to the data of tin. And what I realize is, मुझे क्या पता चलता है कि टिन का तो रिडक्शन पोटेंशियल है, टिन का तो मेरे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, लेकिन सब्स्टिट्यूट तो मुझे ऑक्सीडेशन करना है, तो साइन चेंज कर देंगे, बिकॉज एवरी SRP विल बी इक्वल टू माइनस SOP। तो ये हमने साइन चेंज कर दिया, प्लस 0.14 वोल्ट। अब इसके साथ में मुझे ऐड करना है Fe का रिडक्शन पोटेंशियल, तो मैं वापस डेटा पे गई, Fe का पोटेंशियल है और कौन सा है, अरे ये तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही है, तो यहाँ मुझे कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है और डायरेक्ट मैंने 0.44 ले लिया। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, अरे प्लस माइनस तो आता ही है सबको, 4 में 4 गया 11, 4 में 1 गया 3, 0.30 और ये नेगेटिव यहाँ है तो ये माइनस, और ये माइनस साइन ही बता रहा है नेगेटिव। दिस इज नॉट इलेक्ट्रोजेनिक, दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक एंड दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस सेल। So that's all for the E naught and its connectivity with the spontaneity and non-spontaneity, and also even without calculating the E naught cell, how we can judge from the half cell potentials whether a particular cell reaction is spontaneous or non-spontaneous is also being discussed in this video, student. ये सब वीडियोस जो मैं पोस्ट कर रही हूँ इनका बहुत बहुत मैक्सिमम फायदा उठाओ। आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं ये हम जानते हैं, लेकिन आप इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठाइए। बहुत सारे वीडियोस मैं पोस्ट कर रही हूँ, हर वीडियो का फ़ायदा उठाइए और मैं आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ। आप काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे स्कोर्स भी आ रहे हैं कई स्टूडेंट्स के। गॉड ब्लेस यू, लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।